record the meeting as well. All right, so finally we are going to begin with our question practice session of kinematics. So everyone, I request to be present on question number 19, and this question number 19 is on page number 122 of your booklet. So this question is present on page number 122. So let's disclose what this question is asking from us. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इन द फॉलोइंग लिस्ट अंडरलाइन all quantities that are SI base units. Yeah, that are SI base quantities. तो SI base quantities हमें पता है कि there are seven in numbers. And what are those seven base quantities? It can be length, mass, time, temperature, amount of substance, electric current, लाइट इंटेंसिटी. तो चार्ज जो है वो एसआई बेस क्वांटिटी नहीं होती. इलेक्ट्रिक करंट इज दी एसआई बेस क्वांटिटी. किसको अंडरलाइन कर देना है? फोर्स एसआई बेस क्वांटिटी नहीं होती. टाइम इज, और जो दूसरी हमारे पास एसआई बेस क्वांटिटी है दैट इज टाइम. तो सिंपली यू हैव टू underline them and you're going to get one complete mark for this. Next, let's move on to the kinematics question. What does this question says? कि under certain conditions, the distance moved in a straight line by an object in time t is given by equation s is equals to 1 by 2 a t square. A is called as acceleration of the object. Question says state two conditions under which the above expression applies to the motion of the object. तो वी आर प्रिटी अवेयर कि हम कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं, और ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास किसके थ्रू जो है वो रिलेट हो रही होती है. इफ यू जस्ट राइट डाउन द इक्वेशन S is equals to ut plus of half at square. This is the equation generally we are having for the equations of motion. पर अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो ये इक्वेशन इस इक्वेशन में कब फॉर्म हो जाएगी? जब हमारे पास u की वैल्यू विल बी जीरो. सो इफ द वैल्यू ऑफ u विल बी जीरो, our equation will be set as what? U is equals to 1 by 2 at square. तो इससे हमें ये पता चल गया कि हमारी पहली कंडीशन, what will be our first condition for this expression to be valid? Our first condition will be that initial velocity is zero. Initial velocity is zero. आपने ये बात लिख दी, you will be getting one mark for this. Now, next it says कि what is the other condition? So we know ये जितनी भी equations of motions हैं, ये सारी equation of motion के लिए basic condition क्या है? The basic condition for the application of equation of motion is that के the acceleration should be uniform. तो आप लिखोगे acceleration is uniform and motion is in one direction. जब ये बातें आप कंप्लीट लिख दोगे, ये दोनों बातें लिखने का वन मार्क आपको, और ये इनिशियल वेलोसिटी जीरो इसका वन मार्क, एंड देन यू आर गोइंग टू गेट द कंप्लीट टू मार्क्स फॉर दिस. yes Mohammed, the object is moving in a straight line. So object is moving in a straight line लिख दें, object is moving in a linear motion, object is moving in one direction. इन तमाम वर्ड्स का एक ही मीनिंग है. आगे चलूं? ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ जाता है. व्हाट इज दिस? Alright, so next part says that the variation with time t of the velocity of the car that is moving in a straight line is shown in a figure 1.1. तो ये फिगर 1.1 पे आपके पास एक ग्राफ शो हो रहा है, और इसमें आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ की क्या खास बात है कि यहाँ पे देयर इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन, एंड देन देयर इज अगेन अ स्ट्रेट लाइन, बट यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन है उसका ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा. डू यू रिमेंबर वी वर स्टडिंग इन द क्लासेस फॉर द v and t graphs? For vt graphs, if there is a straight line which is inclined upwards, so उसका ग्रेडियंट हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है. और जब भी देयर इज अ लाइन, अ स्ट्रेट लाइन विच इज फॉलोइंग यू डाउनवर्ड्स, उसका ग्रेडियंट हमारे पास हमेशा क्या होता है? इट्स ग्रेडियंट विल ऑलवेज बी नेगेटिव. तो अभी आपसे क्वेश्चन देखें किससे रिलेटेड और कैसे पूछा जा रहा है इस पेपर के अंदर. सो लेट्स सी, लेट्स कम टू द क्वेश्चन.
Question number one says compare the qualitatively the acceleration of the car at time t is equals to 8 seconds and at time t is equals to 14 seconds in terms of magnitude बताना है और in terms of direction बताना है. अच्छा, एक चीज यहाँ बड़े गौर से देखिएगा इस क्वेश्चन में, वो क्या कह रहा है कि यू हैव टू कंपेयर देम क्वालिटेटिवली. अच्छा, दो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, वन इज कॉल्ड एज क्वालिटेटिवली. क्वालिटेटिवली ये है कि आपने उसको सिर्फ डिस्क्राइब करना है विदाउट कैलकुलेशन. यू हैव टू डिस्क्राइब विदाउट कैलकुलेशन. कैलकुलेशन किए बगैर आपने उसको डिस्क्राइब करना है, डिफाइन करना है या एक्सप्लेन करना है. जब एक एक वर्ड होता है क्वालिटेटिवली, व्हाट इज द ऑपोजिट टू द क्वालिटेटिव वर्ड? उसको लिखा जाता है क्वांटिटेटिवली. क्वांटी क्वांटिटेटिवली. सो क्वांटिटेटिवली का मतलब क्या है? क्वांटिटेटिवली का मतलब है कि यू हैव टू यूज द वैल्यूज, यू हैव टू सॉल्व इट फॉर द न्यूमेरिकल नंबर्स. ठीक है. तो यहाँ पे हमने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी आपसे, वो सिर्फ ये पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फर्क है दोनों की मोशन में. किन दोनों की मोशन में? कि जब आपके पास बॉडी 8 सेकंड पे थी और एक केस में बॉडी 14 सेकंड. यानी कि ग्राफ को आपने डिफाइन करना है जब ये स्ट्रेट लाइन ये बन रही है, और ग्राफ को आपने डिफाइन करना है जब स्ट्रेट लाइन ये नीचे को जा रही है. तो यस, कैन एनीवन लेट मी नो what is the difference between the magnitudes of the two? एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कैसे चेंज हो रहा है बॉडी का? तो 8 सेकंड पे आप क्या बोलोगे? इसको लिखोगे एट 8 सेकंड द एक्सेलरेशन इज लेस. द एक्सेलरेशन इज लेस एज कंपेयर टू एक्सेलरेशन एट 14 seconds. अच्छा, कोई मुझे बता सकता है, कैन यू कम एनी वन ऑफ यू हु कैन कम ऑन ऑन माइक और ये एक्सप्लेन कर सके कि क्यों एक्सेलरेशन 8 सेकंड्स में कम होगी? यानी कि 8 सेकंड के टाइम के ऊपर इस पूरे ग्राफ की एक्सेलरेशन कम क्यों होगी और इसकी एक्सेलरेशन ज्यादा क्यों होगी? यस, इज देयर एनी किड हु कैन आंसर दिस आउट? Sir, can I? जी जी, प्लीज स्पीक अप. Sir, the positive gradient is less steeper than the negative gradient. So that means that the acceleration at t equals to 8 seconds will be less than acceleration at t equals to 14 वंडरफुल. seconds. बिल्कुल सही कहा उमर आपने कि यहाँ पर अगर हम देखें, क्योंकि देखो वी टी ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है, द ग्रेडियंट ऑफ वी टी ग्राफ, वो ग्रेडियंट हमें किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है? इट गिव्स अस द Acceleration के इंफॉर्मेशन बारे ऑफ में. एक्सेलरेशन. तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसकी जो स्लोप है, इस पूरी लाइन की जो मेरे पास स्लोप है, ठीक है, इस पूरे लाइन का जो ग्रेडियंट है वो कम होगा, वो लेस स्टीप है. इट इज लेस स्टीप. और अगर इस पूरे लाइन की मैं देखूं, इट इज मोर स्टीप. So if it is more steep, this is why its acceleration is going to be this way. जी अमान, आपने बात सही की सर, 14 पे वो डीसेलरेट जरूर कर रहा है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है ना. डीसेलरेशन इज ऑल्सो टाइप ऑफ डीसेलरेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एक्सेलरेशन. डिसेलरेशन भी एक्सेलरेशन की टाइप है. तो एक्सेलरेशन को कंपेयर कर रहे हैं दोनों साइड पे, इस पॉजिटिव साइड पे एक्सेलरेशन कैसे और नेगेटिव साइड पे कैसे. तो वो आप ये कह सकते हो कि पॉजिटिव साइड पे वो स्लोली एक्सेलरेट कर रहा है, और जब वो 14 सेकंड के ऊपर है वो क्विकली डिसेलरेट कर रहा है. ठीक है, तो ये उसमें उसने रिलेशन पूछा हुआ है. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? और नेक्स्ट बात, आप वो जो एक्सेलरेशन डिसेलरेशन वाली ये बात कर रहे हो, वो आप फॉलो अप करोगे डायरेक्शन के केस के अंदर. तो आप क्या कहोगे कि द डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू वन अनदर.
इज दिस फाइन? ठीक है, अगर आप कैसे डायरेक्शन ऑपोजिट है, आप इसके इस केस में कह सकते हो योर एक्सेल। आप पॉजिटिव और नेगेटिव का नहीं बोलना, आपने डायरेक्शन के ऑपोजिट नाम का यूज करना है। ठीक है, सो व्हेन इट इज मूविंग टुवर्ड्स दिस यू आर गोइंग टू से दैट एक्सेलरेशन इज इन वन डायरेक्शन, और जब ये बॉडी नीचे की तरफ जा रही है तो यू आर गोइंग टू से एक्सेलरेशन इज इन सम अदर डायरेक्शन। ठीक है, सो इट इज बेटा प्लीज डू नॉट डू दिस, जो भी है डू नॉट ट्राई टू डू दिस एक्शन प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। सर नासिर, जी अहमद अली। सर इट इज़ मोहम्मद उमर खालिद बाय द नेम ऑफ अहमद अली, मेरा यूजर नेम थोड़ा अजीब है, तो सर प्लीज़ ये डोंट कंफ्यूज मी विद अहमद, पता चले आप मुझे भी किक आउट कर दें। ओके, तो अपना नाम अपने आप को रीनेम कर लीजिए प्लीज। ओके सर, आई विल ट्राई टू। ऑलराइट, मूविंग ऑनवर्ड्स, आगे चल रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या आ रहा है? नेक्स्ट वो कहता है डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द कार एट 4 सेकेंड। जी बेटा, ग्राफ से हम एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे? हु इज गोइंग टू टेल मी हाउ टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन एट 4 सेकेंड? यस प्लीज स्पीक अप। जी, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द ग्रेडियंट। तो हमने क्या करना है कि 4 सेकंड के ऊपर एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो कैसे एक्सेलरेशन फाइंड होगी 4 सेकंड्स के ऊपर? इट विल बी डन दिस वे। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर लूँ यहाँ से। अब दीज लाइंस, ओके जी, मुझे करना क्या है? आई नीड टू फाइंड, तो वो मुझे ये कह रहा है क्वेश्चन में कि जी, क्वेश्चन में दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन सेज कि यू नीड टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन एट 4 सेकेंड्स। तो 4 सेकेंड्स कहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं? ये हमारे पास 4 सेकेंड आ रहा है। ठीक है, so this is coming the 4 second, please do not do this। मुझ पे बेईमानियां कले कले थोड़ी ना बनिया मुझ रिमूव पे रिमूव। मनमानियां कले। जो भी अहमद है, आई एम जस्ट स्ट्राइकिंग यू आउट ऑफ द क्लास। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। All right, so we need to find out the acceleration at 4 seconds. ठीक है, so how this will be done at 4 seconds? 4 seconds के अंदर हम क्या करेंगे? इस स्ट्रेट लाइन का हम ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। सो दी जी बेटा देखो, ग्रेडियंट अगर आपने फाइंड करना है, वी नो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सेलरेशन? वी टी ग्राफ से। फ्रॉम अ वी टी ग्राफ वी स्टडीड दैट ग्रेडियंट ऑफ वी टी ग्राफ इज गोइंग टू गिव अस द एक्सेलरेशन। तो आप कोई भी दो पॉइंट सेलेक्ट कर लें। दिस इज गोइंग टू बी योर वन पॉइंट, लेट्स से इट्स पॉइंट 4, एंड लेट्स से द अदर पॉइंट आप सेलेक्ट कर लो, दिस इज योर अदर पॉइंट 20। तो आप ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लेते हो। मैं लेट्स से कलर चेंज करता हूँ, तो यहाँ पे आपका एक पॉइंट क्या आ जाएगा? योर एट दिस पॉइंट योर वन पॉइंट विल बी 4 एंड 0, और इस टॉप पॉइंट के ऊपर आपका दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा? योर पॉइंट इज गोइंग टू बी लाइक, इट विल बी 12 एंड 20। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर इट विल बी 12 एंड 20, इस पॉइंट के ऊपर इट विल बी 4 एंड 0। तो अब मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो? ग्रेडियंट फाइंड करते हो। लाइक यू आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस ऑफ x1।
तो एक्सेलरेशन आपके पास क्या आ जाएगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑन y2? y2 will be 20. What is y1 value? It is 0. Whole divided by what is x2? It will be 12 minus what is x1? It will be 4. तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? You are going to find the answer, get the answer as 20 divided by 8. So 20 divided by 8 will be your answer, and probably it's appearing as, how much is going to be the acceleration? Can you let me know the value? It will be appearing 2.5, as, sir. good. It will be appearing as 2.5 meter per, it will be Meter 2.5 per meter second per square. second square. Okay, so this is how we will be finding out the acceleration. Is it clear? आगे चलूं? ये अभी तक हमारे पास बेसिक बेसिक बातें चल रही हैं. Okay, next question says what you need to do is, so हमारी यहाँ जो acceleration आ गई वो आ गई 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड इफ इट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जब आपने पूरा आंसर यहाँ लिख दिया टू सिग्निफिकेंट फिगर में, तो यू विल बी गेटिंग द कंप्लीट 2 मार्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द कार इज एट अ पॉइंट एक्स एट अ टाइम ऑफ t0. तो एक पॉइंट एक्स के ऊपर मौजूद है गाड़ी, और वो कहता है डिटर्मिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार फ्रॉम एक्स एट टाइम t इक्वल्स टू 12 सेकेंड. सो कितनी थी डिस्प्लेसमेंट गाड़ी की? गाड़ी की डिस्प्लेसमेंट आपने बतानी है 0 से लेकर कहाँ तक? 12 सेकेंड तक. तो अगेन लेट मी चेंज द कलर फॉर इट्स डिस्क्रिप्शन. तो आपने बेसिकली अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है. जी कोई मुझे बता सकता है हाउ शेल वी और हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट इन दिस स्पेसिफिक केस? इट इज Sir, गोइंग टू बी, area to the graph. यस इट विल बी एरिया अंडर द ग्राफ. तो देखो 12 हम सेकंड तक जाएंगे, तो 12 सेकंड का मतलब क्या है कि यू आर गोइंग टू ओनली फाइंड आउट द एरिया. एक तो एरिया ये वाला फाइंड करोगे, पूरा जो येलो में आपको शो हो रहा है, दिस होल एरिया इन द येलो विल गिव यू वन ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड. और दूसरा आप एरिया कौन सा फाइंड आउट करोगे? जो इस नीचे नेगेटिव एक्सिस के हमेशा लाइन से ऊपर वाला आपने एरिया अबव द ग्राफ फाइंड करना होता है. ठीक है, तो ये दो दो एरियाज आप फाइंड करोगे, और इन दोनों एरियाज को फाइंड करके यू विल सब्ट्रैक्ट देम, तो यू आर गोइंग टू गेट द डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, सो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इस तरह आएगी, तो लेट मी कॉल दिस एज एरिया ऑफ वन रीजन. तो फर्स्ट रीजन मैं इसको बोल देता हूँ, सेकंड रीजन मेरा ये बन जाएगा. सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस? वी नो इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. सो व्हेन इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ इंटू व्हाट इज द बेस ऑफ इट? द बेस इज गोइंग टू बी, जी असबा हम सब्ट्रैक्ट इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है. इसमें डायरेक्शन जो है ऑपोजिट हो रही है. जो ऊपर पॉजिटिव वाला है वो डायरेक्शन एक एक वे में मोशन की डायरेक्शन है, और ये नीचे वाली जो है जिसमें वेलोसिटी, वो बॉडी की डायरेक्शन ऑपोजिट वे में है. तो जब भी हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, इन दोनों डिस्टेंसेस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. जी पहले वाला एरिया अंडर द ग्राफ नहीं है. जो पहले वाला रीजन, ये वाला जो बेटा आप पूछ रहे हो, इसके अंदर हो क्या रहा है कि जब भी आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है और ग्राफ आपका नेगेटिव एक्सिस के अंदर है, तो हमेशा यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया बिटवीन द ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस. ठीक है, आप इस तरह याद रख सकते हो. हम इस तरह रीफ्रेस कर देते हैं अपनी स्टेटमेंट को, कि इंस्टेड ऑफ सेइंग एरिया अंडर द ग्राफ, हम ये कहते हैं एरिया अंडर ग्राफ एंड टाइम एक्सिस, या एरिया बिटवीन ग्राफ एंड टाइम एक्सिस इज डिस्प्लेसमेंट. तो ये आपके पास जो स्ट्रेट लाइन है और टाइम एक्सिस है, उसके दरमियान आपके पास क्या आ जाएगा? दिस विल बी द एरिया. और सेकंड केस में आपके पास क्या हो रहा है कि इन द सेकंड केस देयर इज गोइंग टू बी द एरिया बिटवीन दिस ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस. टाइम एक्सिस और ग्राफ के दरमियान जो एरिया होता है, वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा. क्योंकि बॉडी एक डायरेक्शन में पहले गई और फिर थोड़ा सा लेफ्ट डायरेक्शन में आई, तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास बाय द वे कौन सा डिस्टेंस होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का? तो ये आप डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करोगे? पहले के एरिया को, एरिया वन को माइनस कर दोगे दूसरे के एरिया से. तो एरिया वन आपके पास क्या है? हाफ इंटू बेस. बेस विल बी 12 माइनस 4 इज 8. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाइट इज हाउ मच? 20.
So this much area will be how much? This is going to be like 80 80 meters. And what will be the area 2? Area 2 will be the area of this smaller region. What this smaller region is going to comprise? This smaller region is going to give us a value. This smaller region is going to give us a value half into, what is the base? Base is 4 into height is 10. ठीक है, और ये आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी? This value will be equals to 20 meters. So what will be the total displacement? The total displacement will be 60 meters. इन दोनों को माइनस कर दोगे, 80 minus 20. So this will be equals to 60 meters. जी मैं यहाँ क्वेश्चन आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ. क्वेश्चन में एक आया कि एक मोशन का ये सारा ग्राफ आपको शो हो रहा है जिसमें आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है. जब भी आपके पास ग्राफ पॉजिटिव वाई एक्सिस में भी हो, यानी कि पॉजिटिव क्वाड्रेंट में भी हो, और नेगेटिव वाई एक्सिस में हो, और नेगेटिव वाई एक्सिस में भी हो, सो सी व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ दिस मोशन. कि एट वन टाइम यहाँ पर आपके पास मोशन जो है वो पॉजिटिव है, और एट एन अदर टाइम या थोड़े से टाइम के अंदर द डायरेक्शन इज एक्चुअली ऑपोजिट. तो इस स्पेसिफिक केस में अगर हम देखें तो हमारे पास डायरेक्शन क्या हो रही है? ऑपोजिट हो रही है. नेगेटिव में जितना भी ग्राफ है इट इज शोइंग दैट द डायरेक्शन इज ऑपोजिट. ठीक है, ऑपोजिट टू द अबव. सो इफ अ बॉडी इज मूविंग लेट्स से ऑन द राइट, और लेट्स से वो थोड़े से इंस्टेंट के लिए इफ इट मूव्स टू द लेफ्ट, so what will be the displacement? Displacement will be this whole distance minus this shorter distance. तो displacement आपके पास basically ये वाला सारा part होगा ना. This will be your displacement. तभी हम इस पूरी displacement को इस थोड़ी सी displacement से क्या कर रहे हैं? Subtract कर रहे हैं. This is the reason why we सर are subtracting these two areas. जी. सर हम -10 क्यों नहीं ले रहे? -10 बेटा देखो, हम मैग्नीट्यूड्स के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि हम फॉर्मूला जब लगाते हैं ना एरिया का, तो एरिया में ये हाइट्स हैं, ये बेस है, तो ये डायमेंशंस को एक तरह से शो कर रहा है ट्रायंगल्स की. तो ये डायमेंशंस हैं ट्रायंगल्स की, सो डायमेंशंस आर ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव. ठीक है, व्हाइल फाइंडिंग द एरिया यू आर नॉट गोइंग टू टेक देयर लेंथ्स एंड विड्थ्स एज नेगेटिव. जी समझ आ गई? ओके अच्छा जी. देखिए, हमारे पास ऑलमोस्ट इस सेशन को खत्म होने 5 मिनट है, तो अब क्योंकि हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन खत्म किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी ये क्लास थोड़ी लेंथी चलेगी आज, तो आपने दोबारा जैसे ही सेशन खत्म होता है उसी लिंक पे दोबारा क्लिक करके यू हैव टू रिकनेक्ट. इज दिस फाइन? जी किसी का कोई क्वेश्चन, Yes, sir. किसी का कोई सवाल इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में से? सो दिस अपीयर्ड, सो योर डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू अपीयर एज 60 meters. तो ऑलरेडी यहाँ यूनिट्स दिए हुए हैं, अगर यूनिट्स ना दिए हो तो यू हैव टू राइट द यूनिट्स एज वेल. सो जो सारी वर्किंग हमने की, पहले एरिया 1 को फाइंड आउट किया, फिर दूसरे रीजन के एरिया को फाइंड आउट किया, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो हमने क्या किया, बड़े एरिया को दूसरे एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, and eventually we reached up to the value of 60 meters. जी बच्चों आगे चलूं? ओके अब आपने आना है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18. ये क्वेश्चन 18 में अभी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो भी आपने स्टडी नहीं किए हुए, यानी कि इसमें अपथ्रस्ट का कॉन्सेप्ट मौजूद है जो हम नेक्स्ट कमिंग चैप्टर में पढ़ेंगे, और अपथ्रस्ट कैसे फाइंड आउट की जाती है, रो जी वी वाला फॉर्मूला है अपथ्रस्ट का, वो भी आपने स्टडी नहीं किया हुआ. सो फॉर द टाइम बीइंग वी आर स्किपिंग क्वेश्चन नंबर 18. तो क्वेश्चन नंबर 18 हम जब सेकंड कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे अब थ्रस्ट फोर्स का, फिर कर पाएंगे क्वेश्चन 18. अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर. सो एवरीवन प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 17. जी एवरीवन प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 17. ये सब साथ है मेरे?
ओके जी, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, इसको हम स्टडी करते हैं। द इंजन ऑफ अ टॉय रॉकेट। तो एक छोटा सा रॉकेट है, ठीक है, देयर इज अ रॉकेट, और वो रॉकेट जो है कुछ ऊपर की तरफ प्रोपेल करेगा, सही। सो द इंजन ऑफ द रॉकेट, टॉय रॉकेट पुशेस गैसेस वर्टिकली डाउनवर्ड। तो जितनी भी जो गैसेस हैं वो डाउनवर्ड जा रही हैं, और उसके रिजल्ट में रॉकेट कहाँ जा रहा है, रॉकेट इज मूविंग और रॉकेट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स। Question says the rocket starts to move from rest, right? It is beginning from rest. तो ग्राफ भी आपको बता रहा है कि वो कहाँ से शो कर रहा है, it is starting from time equals to 0. The variation with time t of the vertical velocity of the rocket for first 0.3 seconds of the flight is shown in figure 2.1. So this is the figure which is being shown in front of you, और इसमें आपके पास कौन सा ग्राफ है, दिस इज अ VT ग्राफ। जब भी कोई ग्राफ गिवन हो देखा करें कि कौन सा ग्राफ आपको दिया हुआ है, तो इट्स अ ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। सो लेट्स मूव ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन सेज, सबसे पहले क्वेश्चन कहता है कि रॉकेट मूव्स, द थ्रस्ट फोर्स प्रोवाइडेड बाय द रॉकेट इंजन इज 16 न्यूटन। तो जो ऊपर की तरफ रॉकेट को मूव करवाया जा रहा है वो कितनी फोर्स के साथ करवाया जा रहा है, 16 न्यूटन के साथ। क्वेश्चन कहता है assume that the mass of the rocket is constant for this part of the flight. नेक्स्ट वो कह रहा है assume the air resistance is negligible. जब भी ये कहा जाए आपको काइनेमेटिक्स के सवाल के अंदर, ये कहीं पे भी ये बात अपने पास नोट डाउन कर लें, whenever it is stated that air resistance is negligible, आपको यहां से क्या इंफॉर्मेशन लेनी है कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन आप यहां से कलेक्ट करेंगे, ऑलवेज कलेक्ट द इंफॉर्मेशन कि एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। अच्छा, इस मीटिंग में 1 मिनट रह गया है, तो ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मीटिंग को दोबारा रीज्वाइन कर लें। थैंक यू वेरी मच।